Nalanda, which housed the ancient seat of learning as the world's earliest university, and of course, the ancient golden city of Patliputra. Bapu chose me to launch his first Satyagraha movement, and almost I am a treasured house of talent, resources and energy. But the legacy of what I had inherited had a lot of impact on degrading my morale. The law and order had gone to shambles. People felt insecure, which had led to flight of capital and complete brain drain. This had led to an absolute distrust in the hierarchy. The morale of the bureaucracy had hit rock bottom. But thanks to the new government, things are really looking up. There are tremendous opportunities for both private and public sector investment in the urban sector in Bihar. With a new motto of development with justice, I am all set to change my face completely. Boosting the resolve for reconstruction and the drive for development was the President Dr. APJ Abdul Kalam's visit to Bihar in March 2006. He recommended 10 guidelines touching upon all the key areas. These became the touchstone for the government, who is leaving no stones unturned to ensure that all his advices are translated into action. The crying need of the hour for good governance was an effective control of crime through enforcement of law and speedy trials. And the figures speak for themselves. Between January and October 2006 only, as many as 4,726 criminals were convicted in 2,315 cases. And that explains the low morale of even the high-profile criminals. Special Auxiliary Police, SAP, was formed with as many as 4,949 ex-army men, and this force gave the much-needed fillip in checking the crime. Within 3 months since the government took over, Baba Ramdev's camp was organized in Gandhi Maidan, Patna, and people from all walks of life participated fearlessly, implemented the common school system to achieve twin constitutional objectives: free and compulsory education to all children, and equal opportunity and social justice in education system. Yet another innovative scheme under implementation is the Mukhyamantri Samagra Vidyalaya Vikas Karyakram. The Chief Minister Nitish Kumar says, "Make a school, do not construct rooms." Translated into action, it means each school would have 9 components as follows. 2,35,000 teachers is all. The goal is to raise the infrastructure and services in health sector to Indian public health standard. Initiatives have been taken for public-private partnership, outsourcing of services, routine immunization and drug distribution. Private investment is a key factor in health sector because large number of patients go outside for specialized treatment. The government is steadfast in reaching quality medical facilities to remote rural areas of the state. The Mukhyamantri Chikitsa Sahayata Kosh has been set up to help patients from economically weaker section suffering from dreaded diseases. Perhaps the biggest indication of the complete transformation in the health sector of 5-star hotels at various places like Gaya, Bodh Gaya, Rajgir, Pavapuri and Vaishali. Not only has the Chief Minister ensured public grievance redressal by making government officials at all levels accessible to general public, he himself has direct public contact and interaction every Monday and Thursday. If just 1 year is any indication of the path broken and the progress made, I see myself completely transforming in a very near future, and I also foresee all my past glories restored. I feel I have come a long way. I know I am going to be the proudest one. IIM के डायरेक्टर डॉक्टर ढोलकिया जी, रविचंद्रन जी, दूसरे सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले दूसरे सभी पार्टिसिपेंट्स, मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूं उससे संबंधित एक रिटन डॉक्यूमेंट भी आपके बीच सर्कुलेट किया जाएगा और एक छोटी सी फिल्म के जरिए
कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश की गई है। बुलेट पॉइंट्स में जो हमारे इनिशिएटिव हैं उसको भी आपके बीच में वितरित किया जाएगा। इस इंस्टीट्यूशन में आपने मुझको बुलाया और बोलने के लिए बुलाया, इसके लिए मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैनेजमेंट का जीवन के हर क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है और IIM अहमदाबाद ने अपना स्थान देश में ही नहीं दुनिया में स्थापित किया है और ये सभी भारतवासी के लिए गौरव की बात है कि हमारा इतना एक प्रतिष्ठित संस्थान है और इस संस्थान से निकलकर अनेक जगहों पर लोग जाते हैं और महत्व का स्थान पाते हैं। वैसी स्थिति में बिहार जैसे राज्य के बारे में आप सबकी दिलचस्पी है, मैं इसको शुभ लक्षण मानता हूं, क्योंकि बिहार का मतलब क्या है आज देश में? बिहार का मतलब है सबसे ज्यादा पिछड़ा, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी, और उसके बारे में आपकी दिलचस्पी है। और अगर बिहार को आपने समझा तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याओं को आप समझने में जीवन में कामयाब होंगे। और कमोबेश यही फीलिंग आमतौर पर सब जगह है। लोग बिहार के नाम से मजाक करते थे, जबकि बिहार के लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं और मेहनती भी उतने ही। अगर इस देश में जहां कहीं भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, अगर आप नजर दौड़ाएं तो देखेंगे कि बिहार के लोगों का उसमें योगदान, चाहे उसमें काम कर रहे हों, एक्सपर्ट की भूमिका में हों, मैनेजमेंट में हों, हर तरफ आप उनको पाइएगा। लेकिन इतना टैलेंट के बाद भी बिहार के ऊपर थोड़ा मजाक चलता था। लोगों के मन में यह बात आ गई थी कि बिहार में कोई तब्दीली नहीं आने वाली है, कोई परिवर्तन नहीं, बिहार नहीं बदलेगा। लेकिन बिहार के लोगों ने अपने वोट के जरिए पिछले साल 24 नवंबर को यह साबित कर दिया और यह मत प्रकट कर दिया कि बिहार जरूर बदलेगा। और मैं भी आपको यही यहां कहने आया हूं कि बिहार बदल रहा है और बिहार बदलेगा। अब किस प्रकार का बिहार हम लोगों को मिला, हमारे सामने कितने चैलेंजेस थे, आखिर हम किस प्रकार इसको अवसर में तब्दील करना चाहते हैं। बिहार हर प्रकार के इंडिकेटर्स को आप देखें तो बहुत पिछड़ा था। बिहार में सबसे ज्यादा इलिटरेसी, सबसे अधिक बीमार लोग,
अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा, पर कैपिटा इनकम सबसे कम, जो नेशनल एवरेज है उसका 1/3 बिहार का पर कैपिटा इनकम। और इसके बाद जो भी बिहार था उसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और झारखंड बना। झारखंड और बिहार दो स्टेट का क्रिएशन हुआ बिहार के बंटवारे से, और आप उसको देखेंगे तो ज्यादा घनी आबादी वाला हिस्सा बिहार में आया और कम आबादी वाला हिस्सा झारखंड में गया। उसी प्रकार से जितने माइंस थे, मिनरल्स थे, सब झारखंड में गए, नेचुरल रिसोर्सेज, बिहार में वे नहीं। और आजादी के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, जो भी इंडस्ट्रीज थी वो ज्यादा झारखंड में थी, वो झारखंड में चला गया। जो पावर प्लांट्स लगाए गए थे वो अधिकांशतः झारखंड में चले गए। 2 पावर प्लांट बिहार में रहा, छोटा, लेकिन वो भी बंद। तो ये हालत बिहार की थी। और इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी जो बिहार में क्रिएट हुए थे वो सब झारखंड में चले गए ज्यादातर। तो बिहार की हालत और बिगड़ी। इसके बाद वहां के जो हालात थे पिछले अनेक वर्षों से, उसके चलते वहां के सोसाइटी में एक तनाव का वातावरण था। और इसके साथ साथ एक सबके मन में निराशा थी। और इसी के चलते पूरे देश में और जहां कहीं भी देश के बाहर भी बहुत हद तक लोगों के मन में बिहार के बारे में एक ऐसी छवि बनी कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। और इन्हीं परिस्थितियों में बिहार के लोगों ने मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी डाली है कि उस बिहार का विकास हो। हमने इलेक्शन कैंपेन में और उसके पहले न्याय यात्रा के दौरान एक ही बात कही थी कि बिहार का विकास होगा और न्याय के साथ विकास होगा, ग्रोथ विथ जस्टिस। और दूसरी बात हमने कही थी कि ये जो समाज में इतना डिवाइड पैदा हुआ है, हम इसको जोड़ेंगे। हम समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। और बिहार के लोगों ने इसको स्वीकार किया और मेरे हाथ में जवाबदेही सौंपी। अब इतना चुनौतीपूर्ण कार्य, लोगों ने कहा कि इसको कैसे ठीक करेंगे। हमने कहा हमारे सामने चैलेंजेस हैं, लेकिन हम इसको अवसर में बदलेंगे। और पहले दिन से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। कई इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिए हैं। मैं उन चीजों में बहुत जाना नहीं चाहता हूं। कुछ से आप परिचित हैं, कुछ को इस छोटे से फिल्म के जरिए भी आपने देखा, और बाद में भी जो एक बुलेट पॉइंट के जरिए हम वो जानकारी आपके बीच पहुंचा देंगे। आप जब उसको देखेंगे तो वो जान जाएंगे। लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स हम लोगों के थे और उसका परिणाम ये हुआ, जब हम लोग आए थे तो उस समय हर आदमी वहां बात कर रहा था लॉ एंड ऑर्डर।
कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कीजिए, इसके ठीक हुए बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। और आज 1 साल के अंदर अब लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं करता। अपराध होते हैं और दुनिया भर में अपराध होते हैं, क्राइम्स होते हैं, लेकिन पहले क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते थे और अब सिर्फ क्रिमिनल पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनका स्पीडी ट्रायल कराया जा रहा है, उनका कन्विक्शन हो रहा है। और अब रोज नया नया ट्रायल में और कन्विक्शन में नया रिकॉर्ड बन रहा है इस देश का। फिरौती के लिए अपहरण, किडनैपिंग फॉर रैंसम के इंसिडेंट्स बहुत होते थे पहले। अब न सिर्फ इंसिडेंट्स में कमी आई है, बल्कि अब लोग पकड़े जा रहे हैं और वही पुलिस पकड़ रही है उनको निकाल रही है। और वैसे केसेज में स्पीडी ट्रायल के जरिए क्रिमिनल्स का कन्विक्शन हो रहा है और कन्विक्शन का रेट अब इतना बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से स्पीडी क्रिमिनल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए वहां काम हो रहा है, ये सचमुच जानने और ध्यान देने की बात है कि एक ऐसा स्टेट जहां लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था कि वो इंप्रूव करेगा और क्रिमिनल्स को सजा दिलाई जाएगी। जीवन के कई क्षेत्रों में उनका अपना दबदबा था, लेकिन आज बगैर किसी भेदभाव के जो बिहार में इस मामले में काम हुआ है वो देखने लायक और समझने लायक है। और इसमें जुडिशियरी का उतना ही सहयोग मिल रहा है। और अभी हाल में पटना में स्पीडी क्रिमिनल जस्टिस पर 2 दिन का एक वर्कशॉप हुआ, उसको ऑर्गेनाइज किया पटना हाई कोर्ट ने और बिहार गवर्नमेंट ने मिलकर। और उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट जज, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, सारे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस और सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भाग लिए। और 2 दिन तक उस वर्कशॉप के बाद कई निर्णय हुए कि इसको और तेज करना। और वहां हमने एक सवाल छेड़ा। हमने कहा कि अब क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज हो रही है और हो रही है, काफी लोग कन्विक्टेड हुए हैं। और हमने आग्रह किया किसी प्रकार से करप्शन के मामले में होना चाहिए। ट्रैप केसेज में, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के मामले में, इस मामलों में भी स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। और उन लोगों ने भी स्वीकार किया। तो वहां जिस प्रकार से कन्विक्शन हो रहे हैं उसका व्यापक असर पड़ा है। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत लोग कितने लोग पकड़े गए और उनको सजा दिलाई गई। बिहार में ये आम बात थी कि लोग हथियार लेकर घूमते थे, अपनी गाड़ियों पर चलते थे और गाड़ी का जो स्क्रीन होता है उसको पीछे कर वो नीचे करके वो राइफल की नोक और बंदूक की नोक को बाहर दिखलाते थे ताकि दूसरे लोग टेरराइज्ड हो। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसा करके कोई निकले। तो इतने कम दिनों में ये हालात बदले हैं, इस प्रकार से हालात बदले। और मैं दोहरा कर करता हूं कि क्राइम होते हैं, हर जगह होते हैं, वहां भी होंगे। कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता है कि क्राइम होंगे ही नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि क्राइम होंगे तो क्रिमिनल पकड़े जाएंगे, उनको सजा दिलाई जाएगी। और इस बात से लोगों के मन में इतना कॉन्फिडेंस आया, इतना विश्वास पैदा हुआ कि शाम होते कोई अपने फैमिली के साथ बाहर निकलना नहीं चाहता था। आज आप चले जाइए, लोग जरूरत पड़ने पर इवनिंग में भी बाहर निकल रहे हैं, महिलाएं बाहर निकल रही हैं
ये लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, एक विश्वास जागा, और ये परिवर्तन हर कोई वहां नोटिस कर रहा। दूसरी बात थी कि सोसाइटी में एक ऑल द टाइम कॉन्फ्लिक्ट जैसा सिचुएशन था, आपस में झगड़ा, खूब झगड़ा, और 1 साल बीता है, हमने उस टेंशन को समाप्त करने की कोशिश की है, और आज वहां एक बेहतर माहौल बना है। अब ट्रस्ट का वातावरण पैदा हुआ है, डिस्ट्रस्ट का वातावरण समाप्त हुआ है। अब सब मिलकर चल रहे हैं, और इसका कारण सरकार किसी की तरफ झुकी हुई नहीं है, यानी किसी की उपेक्षा नहीं हो रही है, और न किसी के साथ पक्षपात किया जा रहा है। तो इसने पूरे स्थिति में एक बदलाव लाया। तो लॉ एंड ऑर्डर, सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव, इन दोनों मोर्चों पर हम लोगों ने इस प्रकार से काम किया है कि इसका व्यापक प्रभाव जनमानस पर भी पड़ा है, लोगों पर भी पड़ा है, और जो लोगों का विश्वास पैदा हुआ है उसी से लोगों का सहयोग और समर्थन मुझको मिल रहा है। आज पूरी जनता का सहयोग है। मैं नहीं जानता हूं, स्वाभाविक है, अपोजिशन में लोग होंगे, वो बोलेंगे, लेकिन लोगों का फेथ और लोगों का समर्थन ये साफ दिखता है। और इसके बाद हम लोगों ने जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किया, जो कुछ भी हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में किया है, वो आपके सामने संक्षेप में मैं जरूर बताना चाहूंगा। बिहार का स्ट्रेंथ क्या है, बिहार की जो कमी थी, कमजोरी है, उसको हमने गिना दिया। और कमजोरी गिनाते वक्त आपको एक पावर के बारे में जरूर, बिजली के बारे में हम बताना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी, क्या हाल बिहार का था। हमारे बिहार में पावर कंजम्पशन 75 यूनिट पर हेड, जबकि कंट्री का एवरेज है 603 यूनिट्स, यानी इस हाल में बिहार। तो ये सारी तो डेफिशिएंसी वहां की है, लेकिन हमारा स्ट्रेंथ क्या है? हमारा स्ट्रेंथ, जिसकी एक बात की चर्चा की, ह्यूमन रिसोर्स, हमारा यंग पॉपुलेशन, युवा लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, और जैसा हमने कहा कि बिल्कुल मेहनती लोग हैं, मेधावी लोग हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी। इसके अलावे हमारी मिट्टी उपजाऊ है, फर्टाइल सॉइल, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छे, पानी, और इस सब के अलावे एक रिच कल्चरल हेरिटेज है हमारी, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। तो ये हमारा स्ट्रेंथ। तो हमें अपनी कमजोरियों पर काबू पाना है, और जो हमारा स्ट्रेंथ है उसके बदौलत आगे बढ़ना है। यही रणनीति हमने इख्तियार की है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर हमने ध्यान दिया है, हेल्थ केयर और एजुकेशन के क्षेत्र में, और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत करने की हमने कोशिश की। आज एक फिगर आपको दिखलाया गया कि हमारे यहां पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इतना इनएफिशिएंट था, या बल्कि कहिए था ही नहीं। उसका नतीजा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो ब्लॉक लेवल पर होते हैं, उसमें ऑन एन एवरेज एक महीने में 40 से भी कम लोग जाते थे अपने ट्रीटमेंट के लिए।
आज अक्टूबर महीने में वो फिगर बढ़कर एवरेज हो गया है 3000 प्लस। और हमने कई इनिशिएटिव लिए, अब डॉक्टर्स वहां रहने लगे। और ये तब जबकि पिछले अनेक वर्षों से 10-12 वर्षों से डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ हमारे यहां। जो भी हमारे यहां साधन था, रिसोर्सेज थे, उसको इस ढंग से हमने लगाया है कि अब डाउन टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर अब डॉक्टर्स हैं और हम वहां फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट मेडिसिन फ्री दिए जा रहे हैं और उसके चलते नतीजा है कि हमारे यहां बहुत लोगों की जान बचाई गई। आपको आश्चर्य होगा ये फिगर, लेकिन बहुत ही इस पर ध्यान देने की चीज है कि हमारे यहां सांप काटने से बहुत लोग मरते हैं। और इस बार हजारों लोग बचाए गए हैं उसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब जगहों पर जो इन दवाओं का इंतजाम किया गया। तो हेल्थ केयर पर हमारा ध्यान है, एजुकेशन पर। हमारे यहां तो पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत कम थे। टीचर पीपल रेशियो नेशनल नॉर्म है 1:40, 1:40। और हमारे यहां बिहार में तो अगर एवरेज लें तो 1:92, लेकिन कई जगह पर आप जाएंगे तो लड़के 200 पढ़ाने वाले एक टीचर, और वो भी गायब। स्कूल बिल्डिंग की हालत बेकार। अगर वहां कोई पेड़ है तो उसके नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहां है अगर हल्का फुल्का भी, अब यहां की बात, गुजरात की बात तो छोड़ दीजिए, बच्चे कभी भी उसके शिकार हो सकते हैं, ऐसी स्थिति। तो हम लोगों ने एक बार ये फैसला किया आने के बाद कि हम टीचर्स की कमी को दूर करेंगे, जो ड्रॉप आउट्स की उसकी समस्या को टैकल करेंगे। और एक बार 1:40 टीचर पीपल रेशियो को अचीव करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि टीचर से अपॉइंट किए जाएंगे, और टीचर से अपॉइंट हो रहे हैं 2.35 लाख। एक बार की 2,35,000 टीचर अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। शायद इतने बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से इतना बड़ा रिक्रूटमेंट इस देश में नहीं हुआ होगा जितना बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव हमारा चल रहा टीचर्स के लिए। 2,35,000 एक बार, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। और यही नहीं, जो पढ़ नहीं पाते, स्कूल से बाहर हैं, उनके लिए हम लोगों ने तय किया 15,000 नए स्कूल खोले जा रहे हैं। और अब तो जो खेलते रहते हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, उनके लिए हम अब एक नया काम करने जा रहे हैं। वो भी हमारे जो पुलिस वाले हैं, वो और जो उनकी पहचान है, उनकी जो छवि है, वो बताने की जरूरत नहीं है। रात दिन उनको क्रिमिनल से डील करना पड़ता है, लेकिन उनको हमने कंस्ट्रक्टिव रोल सौंपा है। जो शहर या गांव में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनको प्रेम से उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दें। और इस काम के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। हम पुलिस वालों के बीच से ही मास्टर ट्रेनर्स बना रहे हैं, और एक एक पुलिस स्टेशन में एक एक ऑफिसर इंचार्ज से डाउन द लाइन एक एक आदमी की ट्रेनिंग होगी, ताकि उनकी आदत तो ऐसी नहीं रही है ना। वो तो अगर किसी को कहेंगे भी तो वो प्रेम आएगा नहीं उसमें। इसलिए उनको उसी प्रकार से सेंसिटाइज किया जा रहा है। तो इतनी हमारी दिलचस्पी है किस तरह से हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर ध्यान दें, और उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सड़कें कैसी है। आप में से बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होगा, हमारे बिहार के भी लोग यहाँ हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस होगा। और आप लोग कभी हमारे बिहार के लोगों को कुछ
चढ़ाते हुए कुछ एक्सपीरियंस आप भी जानते होंगे, डायरेक्ट नहीं, लेकिन सुनकर कुछ जानते होंगे। सड़कों की स्थिति को सुधारना है और अकेले इस साल हम 2000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। इस साल हमारे यहां नदी है, नाले हैं, ब्रिजेज की जरूरत है, कलवर्ट्स की जरूरत है, लेकिन वो पूरा नहीं होता था। कभी कभी सड़कें बन जाती थी, लेकिन पुल नहीं होने के कारण कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। तो अलग से उसके लिए हमने योजना बनाई और उस पर काम शुरू हो गया। आज आपके बीच में मैं 26 नवंबर को हूं, 20 नवंबर को योजना लॉन्च हुई। 300 करोड़ रुपया इसी साल खर्च करना। तो इस तरह से रोड में, इलेक्ट्रिसिटी में हमारी कोशिश, हमारे यहाँ 0 जनरेशन था। आप पूछेंगे आपके यहाँ क्या है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर मत जाइए, कितना जनरेशन होता है तो शायद आपको किसी राज्य का वो फिगर नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार का पक्का मिलेगा। क्या है जनरेशन, तो हम बगल में लिख देंगे 0। हालांकि 0 बेसिक चीज है, 0 के बिना कुछ संभव नहीं, उसी 0 से शुरू कर रहे हैं। और शायद कुछ ही महीने में हमारा 2 यूनिट कई साल से बंद था, और 1 यूनिट तो उसके चालू होने में जितना समय लगता था, बंद होने में कोई टाइम नहीं लगता था। वो बरौनी गई, बहुत मेहनत करके लोग उसको चालू कराते थे जनरेशन, लेकिन हुआ नहीं, जनरेशन शुरू नहीं हुआ, फिर से प्लांट बैठ गए। तो इस हालत में तो उसका रेनोवेशन का प्रोग्राम चल रहा एनटीपीसी और बीएचईएल के सहयोग से, और वो बहुत जल्दी मुझको उन लोगों ने एश्योर किया है कि वहां से जनरेशन शुरू हो जाएगा। तो वहां से जनरेशन की शुरुआत होगी और कुछ माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे बन गए हैं, उनसे कुछ जनरेशन होगा। और फिर जब हमारे यहां जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बड़े पैमाने पर आ रहा है, इन सब चीजों के बाद हमने ऐसी पॉलिसी बनाई कि हमारा स्ट्रेंथ है कोर कॉम्पिटेंस एग्रीकल्चर। शुगर प्रोडक्शन में जब देश को आजादी मिली थी, उस समय बिहार का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 25% था, आज मात्र 2% है। लेकिन वहां इसकी बहुत संभावना है। तो हमने जब इसके लिए पॉलिसी बनाई तो 1 साल के अंदर, 1 साल भी कहना गलत होगा, 10 महीने के अंदर, क्योंकि हमने जनवरी में पॉलिसी बनाई, तो 10 महीने के अंदर अनेक इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हमें मिले। और सबसे ज्यादा शुगर केन बेस्ड इंडस्ट्री, मेज बेस्ड इंडस्ट्री के प्रपोजल मिले हैं, और चीजों के भी मिले हैं, लेकिन इसके प्रस्ताव मिले हैं। तो जो शुगर इंडस्ट्री होगी उसमें वो शुगर प्रोडक्शन भी करेंगे, को जनरेशन भी करेंगे, एथेनॉल का भी लगेगा। तो इस प्रकार से वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और अनेक प्रस्ताव आए हैं, और कुल मिलाकर के इतने कम दिनों में, और हमने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई और कई निर्णय लिए, उन सब चीजों का मिला जुला असर है कि कुल 61 इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल मिले हैं, और कुल मिलाकर 26,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव मिले। प्रस्ताव तो और ज्यादा के मिले, लेकिन हम लोगों ने जो उसको एग्जामिन किया, हमारे यहां स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, उसके लिए हमने कानून भी बनाया, कई हमने लेजिस्लेटिव मेजर्स भी लिए हैं, और इन सब चीजों का असर है कि इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो को जनरेशन से भी कुछ बिजली आ जाएगी, तो बिजली के क्षेत्र में भी स्थिति बदलेगी, सड़क के क्षेत्र में भी स्थिति बदलेगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों में जो इनिशिएटिव है और वो काम दिखने लगा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। और इन सब चीजों के साथ, जैसा हमने शुरू में कहा, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल हार्मोनी, और इसके साथ ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोगों ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है। उसके चुनाव भी हुए, बहुत ही पीसफुल चुनाव हुए, और हम लोगों ने
बिहार में जो पंचायती राज एक्ट बनाया उसमें पहली बार इस देश में 50% वुमेन रिजर्वेशन दिया। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, जीत करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में महिलाएं 50% से भी ज्यादा आई हैं। और ये देश में पहली बार हुआ। कोई बिहार की तरफ देखना नहीं चाहता था। अब कम से कम इतने दिनों के अंदर हम ये कहने की स्थिति में हैं कि पहली बार इस देश में कुछ काम हुआ है बिहार में। और पहले नंबर पर हम कोई चीज बता सकते हैं तो वह 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हम लोगों ने दिया। और वो जीत करके आए, 50% से ज्यादा जीत करके आए। और अभी उनके ट्रेनिंग का प्रोग्राम हुआ है। जिस प्रकार से उनमें उत्साह देखा गया, रोल रिवर्स कर रहा, घरों से निकलकर बाहर आई। वो घर में मर्दों के लिए खाना बनाती थी या सबके लिए बनाती थी। आज उनको सार्वजनिक काम करना है तो उनके काम में उनके घर के मेल मेंबर्स मदद कर रहे हैं। और एक जगह का तो मीडिया ने भी उसको कैप्चर किया था। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा था 17, 18, 19 नवंबर को। तो वहां पर भीतर ट्रेनिंग चल रही थी और बाहर उनके घर के संभवतः उनके पति भी बच्चों की देखभाल कर रहे थे। तो ये सी चेंज है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन। पूरा का पूरा माइंड सेट बदल रहा है लोगों का। और जब हमने उस बिल पर बहस के दौरान असेंबली में और वहां काउंसिल में बात कही थी, हमने कहा था कि बिल्कुल राजनीति और सार्वजनिक क्षेत्र का पूरा परिदृश्य बदल रहा और एक नया नेतृत्व उभरा है, नई जिम्मेवारी। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया है और उसमें लोगों को अधिकार संपन्न बनाया। हमारे यहां पहले जब हम सरकार में आए थे तो 25 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट में आना पड़ता था। आप उम्मीद करिए 25 लाख रुपया, आज एक छोटा पुल बनाने का पैसा, एक स्कूल बनाने का पैसा, और इस एक डिसीजन के क्लियरेंस के लिए कैबिनेट तक आना पड़ता था। हमने 20 करोड़ रुपए तक के लिए प्लान एक्सपेंडिचर के लिए डिपार्टमेंट को ऑथोराइज किया। और अब बड़े फैसलों के लिए लोग कैबिनेट में आते हैं। यानी जिम्मेवारी का बंटवारा, एम्पावरमेंट, ग्रासरूट डेमोक्रेसी को मजबूत करना, सोशल हार्मोनी, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना। जब हम लोग आए थे सरकार में तो हमने देखा कि पुलिस वालों की भी बहाली नहीं हो रही है बहुत जमाने से, और काफी वैकेंसीज थी। और हमने देखा, उसका एक एनालिसिस किया फर्स्ट वीक में ही, तो हमने देखा कि एवरेज एज हमारे यहां पुलिस फोर्स का 38 था। हमने सोचा क्रिमिनल्स के पीछे ये दौड़ेंगे, 38 एवरेज एज है, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हाउ विल आई डिलीवर। ये हमारे सामने ये चुनौती थी। तो हमने देखा कि रिक्रूटमेंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन रिक्रूटमेंट होगा उसमें टाइम लगेगा, और रिक्रूटमेंट के बाद उनकी ट्रेनिंग होगी, तब वो फोर्स में इंडक्ट होंगे, तो मिनिमम साल से 2 साल का समय लगेगा। और फिर हमने देखा कि भाई ट्रेनिंग फैसिलिटीज क्या है, तो पता चला कि हमारे यहाँ पुलिस को ट्रेन करने का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो झारखंड में चला गया, बिहार में है। तो फिर देश भर में जितने पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्कूल्स हैं, सब में बात करके कि वहां हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, वो बाकी लोग तैयार हैं, वो कर देंगे हमारा ये काम। बिहार में भी उस कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, लेकिन हमने देखा होगा क्या, और तब तक ये और किसी को मालूम हो या ना हो, शरीफ आदमी को ये बात मालूम हो या ना हो, क्रिमिनल्स को तो मालूम है कि हमारे क्या वीकनेसेज हैं। उनकी वेपनरी देखिएगा हमारे यहां का, तो बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला सब कुछ है। क्रिमिनल्स के पास मॉडर्न वेपन्स हैं, उनके पास बेटर कम्युनिकेशन नेटवर्क है,
ये सब कुछ था। तो बाकी मॉडर्नाइजेशन पर तो हमने ध्यान दिया, लेकिन साथ साथ हमने सोचा कि इमीडिएट करना पड़ेगा। फिर हमने देखा और सोचा, तो एक निर्णय हमने लिया कि एक्स आर्मी मैन को हम स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस के रूप में बहाल करेंगे। और जब ये आइडिया शेयर किया गया, हमारे यहां पटना के बगल में दानापुर में कैंटोनमेंट है, तो दे वर एक्साइटेड। कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक तो आर्मी से लोगों का रिटायरमेंट तुरंत होता है, और उन लोगों ने कहा कि ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। ये तो उनके वेलफेयर का भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है। सेंट्रल गवर्नमेंट रोज स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखती है कि एक्स आर्मी मैन को यहां रिजर्व करिए, इनको ये जगह दीजिए, किसी काम में लगाइए। हमने सोचा नहीं, हमारे पास तो जरूरत है। और 5000 एक्स आर्मी मैन को हमने इंडक्ट किया और सैप बनाया। इससे आज हर आदमी हमारे यहां बिहार में सैप जानता है। स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस कौन बोले? सैप, सैप सब बोले। और वो इतना पॉपुलर है, आपको मैं बता दूं, आज कहीं कोई घटना घटती है या किसी इलाके में लोग तबाह होते हैं, तो वहां से ये मांग नहीं होती है कि यहां बीएसएफ भेजिए, सीआरपीएफ भेजिए। वहां से मांग होती है कि यहां सैप डिप्लॉय कीजिए, और सैप के लोग जाते हैं, स्थिति को नियंत्रित करते हैं। तो ये हालात वहां थे। तो ये भी देश में पहली बार जब हम लोगों ने किया, तो देश के रक्षा मंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा, और मुझको मालूम कैसे हो गया, वो गलती से पत्र मेरे पास दिया गया। सबको उन्होंने लिखा कि बिहार ने ऐसा किया है, आप भी कीजिए, और उसकी कॉपी मुझको भी आई। तो उसी से हमने जाना कि ये रक्षा मंत्री की तरफ से सारी सरकारों को कहा गया कि एक आर्मी मैन को आप इस तरह से रखिए या उनके वेलफेयर पर आप ध्यान दीजिए। तो बहुत सारा काम इतने कम दिनों में हम लोगों ने किया है, जो पहली बार हुआ इस देश में। कॉमन स्कूल सिस्टम की बात बहुत हुई है, लेकिन हो नहीं पाया। और कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए जो लोग भी नामी गिरामी लोग हैं, उन सब लोगों को लेकर हम लोगों ने, मुचकुंद दुबे जी हैं, अनिल सतगोपाल जी हैं, ये सब हमने कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन बनाया, ताकि सबको एक समान शिक्षा तो मिल जाए। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन सबको मिले। तो इस दिशा में हम लोगों के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, और जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रिफॉर्म की जरूरत थी। इसलिए स्टेट लेवल पर भी पहली बार हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनाया। पहली रिपोर्ट आ गई, उनके रिकमेंडेशंस को हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए। और इतने दिनों में कम से कम मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे ऑफिसर पहले निर्णय नहीं लेते थे, इसलिए कि कोई उनको निर्णय लेने के लिए कहता नहीं था, और नहीं कोई वो निर्णय लेते थे तो उनकी शाबाशी देता था उनको, और नहीं लेने पर उनको कोई सजा भी नहीं देता था। बस यूं ही चल रहा, सब चलता है कि तर्ज पर चल रहा। जब हम लोग आए तो शुरू में तो हमारे अफसर्स को भी लगा कि नई सरकार आती है तो कुछ बोलते हैं लोग शुरू में, लेकिन धीरे धीरे उनको इस बात का एहसास हुआ कि नई सरकार सचमुच काम करना चाहिए। और मैंने काम करना शुरू किया है, कोई बहुत अच्छे माहौल से नहीं, हमने काम करना शुरू किया है। जो मेरे साथ सेक्रेटेरिएट है उसमें ओल्ड मॉडल रेमिंगटन टाइप मशीन था। इस प्रकार के काम से हमने शुरू किया। मेरे लिए जब टेलीफोन मिलाने वाला होता था, उसको अगर हमने कहा कि बिहार के स्पीकर साहब को लगा दीजिए, तो दिल्ली में स्पीकर साहब को लगा देता। तो यहां से हमने काम करना शुरू किया। कोई बनी बनाई चीज नहीं मिली है, हम खुद हर क्षेत्र में राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है, चाहे वो हमारे राजनीतिक सहयोगी हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हों,
चाहे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे आम लोग हों, चाहे वो प्रोफेसर हों, डॉक्टर हों, ट्रेडर्स हों, कोई हो, हर आदमी का सहयोग मिल रहा है और इतना परिवर्तन आया है बिहार में कि अब सबके मन में उत्साह पैदा हुआ है और सबको लगता है कि बिहार बदलेगा। और मैं इतना ही आपको कहूंगा, दो तीन बातों की चर्चा मैं यहां और करना चाहता हूं। क्वेश्चन के तौर पर मैं इसको पोज करके अपनी बात खत्म करूंगा, और वो ये कि आखिरकार इस प्रकार से जो एरिया, जहां जिसको आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट डेफिसिट जहां है, जिस एरिया में बहुत पिछड़ गया है कोई इलाका, या जो रीजनल इम्बैलेंस है, उसको कैसे पाटे। कुछ ऐसी नीतियां होनी चाहिए केंद्र की भी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार जैसा इलाका जो लिबरलाइजेशन के दौर में पिछड़ा है, पिछड़ चुका है, उन जगहों पर कई क्षेत्रों में अभी और ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी नीति होनी चाहिए कि जो जहां जो डेवलपमेंट डेफिसिट का इलाका है, जो इलाका बहुत पिछड़ा है, उसको आगे लाने के लिए कई कदम केंद्र की तरफ से करने होंगे। ये भी हो सकता है। आप बताइए, बिहार एक था, सब कुछ एक एरिया में किया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमने बताया यंग पॉपुलेशन हमारा सब ज्यादा है, उनको पढ़ाने के लिए, उनके पढ़ने के लिए कोई अच्छा टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आखिर इन क्षेत्रों में प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। हमारे यहां जो खास करके बिजली की स्थिति है, उसको देखते हुए और जिस प्रकार का बंटवारा बिहार जैसे राज्य का हुआ, तो उसमें रिसोर्स शेयरिंग की भी बात क्या नहीं हो सकती है कि जो ओरिजिनल स्टेट में जो रिसोर्सेज थे, अगर दो हिस्से में बंटे हैं, तो उनके रिसोर्सेज का भी कुछ न कुछ इस प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज का भी बंटवारा होना चाहिए। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करेंगे, और जो इलाका पिछड़ा रहा है उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा देकर, फाइनेंस कमीशन मदद करती है, प्लानिंग कमीशन से पैसा आता है, कुछ बैकवर्ड रीजन के विकास के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन उनसे बिहार जैसे इलाके का उद्धार नहीं हो सकता है। और अगर बिहार जैसा बड़ा राज्य और इतनी आबादी वाला राज्य पीछे रहेगा, तो देश को जो ग्रोथ रेट हासिल करना है उसको हासिल नहीं कर पाएगा। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी कहा है कि अगर बिहार पिछड़ा रह जाएगा तो देश को आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। इसलिए इस प्रकार के इलाकों के विकास के लिए केंद्र को भी करना होगा, और IIM जैसा इंस्टीट्यूट जो प्रतिष्ठित संस्थान है, ऐसी जगहों पर भी इन बातों की चर्चा होनी चाहिए। और आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, इस प्रकार से आप सबका ध्यान जाता है, सिर्फ वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही नहीं जाएंगे, बल्कि इस देश की जमीनी हकीकत से, ग्राउंड रियलिटी से भी ये वाकिफ रहेंगे, तो और बेहतर मैनेजर बन सकेंगे और बेहतर मैनेजमेंट दे सकेंगे। इसलिए इस प्रकार का जो आपका फोकस हुआ है, इसलिए मैंने ये सोचा कि कुछ जो इशूज हैं हमारे सामने, रीजनल डिस्पैरिटी के, डेवलपमेंट डेफिसिट के, कैसे इनको पूरा किया जाए, इसमें सर्टेन कुछ खास नीति विषयक संशोधन भी होने चाहिए केंद्र के स्तर पर, और विकास होगा तभी जब सब मिलेंगे, केंद्र मिले, राज्य मिले और दूसरे बाकी इंस्टीट्यूशंस भी मिले, तभी इसका विकास हो सकता है। तो आपके बीच अब बिहार के विकास का क्या रहस्य है? बिहार के विकास का रहस्य है बिहार के लोगों की इच्छा शक्ति, और वो इच्छा शक्ति जाग चुकी है। अब बिहार के लोग जाग चुके हैं, और एक बार बिहार जाग गया तो न सिर्फ बिहार की तरक्की होगी, बल्कि मुल्क की तरक्की में भी अपना योगदान करेगा। बिहार पिछड़ा था, लोग मजाक उड़ाते थे बिहार में परिवर्तन नहीं हो सकता,
पिछले साल नवंबर में बिहार की जनता ने अपने वोट के जरिए ये साबित कर दिया कि बिहार में परिवर्तन हो सकता है, राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। और आज मैं इस मंच से आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस प्रकार से बिहार के लोगों ने परिवर्तन लाकर यह साबित किया कि बिहार में परिवर्तन हो सकता है, हम सब लोगों के सहयोग से वहां विकास करके, न्याय के साथ विकास करके ये जतला देंगे कि बिहार बदल सकता है और बदला हुआ बिहार देश की तरक्की में योगदान कर सकता है। ऐसा बिहार जरूर बनेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और आप सब लोगों ने यहां मुझको सुना, बुलाया, इसके लिए मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हूं। और IIM से विशेष आग्रह मैं करूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री को तो आपने बुला लिया, लेकिन बिहार को हमेशा फोकस में रखिए। देखिए, बिहार लैंड ऑफ इनलाइटनमेंट है। बिहार से ज्ञान की रोशनी निकली थी। इस दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी बिहार में ही था, नालंदा में था। हम फिर से नालंदा को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया विश्वविद्यालय बने। लेकिन आज तो ज्ञान के केंद्र IIM जैसे संस्थान है, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। और जिस प्रकार से भी हो, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में ही सही, यहां से भी कुछ अपने ज्ञान की रोशनी बिहार तक पहुंचाइए। यही हम आपसे अनुरोध करेंगे। और ढोलकिया साहब से हमारी कुछ बात हुई है, मैं समझता हूं उसको यहां बताने की जरूरत नहीं है, उस पर ध्यान देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने एक गरीब प्रदेश के, एक पिछड़े प्रदेश के प्रतिनिधि को सुना। आपकी उदारता का मैं नमन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है। बट बिहार की हमेशा से एक और समस्या बाढ़ की रहती थी, तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है? इस बार तो शायद उतनी बारिश नहीं हुई, बट उसके लिए आपने कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स सोचे हैं? यह आपने ठीक पूछा है। वहां बिहार हमेशा फ्लड से तबाह होता है, और ये जो फ्लड्स आते हैं देश की सीमा के बाहर से, और ये मसला ऐसा है जो बिहार के विकास में बहुत बड़ी रुकावट डालता है। और इसके लिए हम लोगों ने जो कुछ लिया था, नेपाल के साथ बातचीत और कुछ काम चल रहा है, लेकिन इन सब चीजों के अलावे हमने ये सोचा है कि हम अपने स्टेट के अंदर कुछ ऐसा करें। इसलिए हम एक बहुत ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वो है राज्य के अंदर की रिवर्स को इंटरलिंक करने का। उससे फ्लड के इंपैक्ट को हम कम कर सकते हैं